Good morning, children. Today we are going to do our next chapter in computer. That is chapter 4, more about MS PowerPoint. Let us first know what is PowerPoint. If we don't know what is PowerPoint, we don't understand its advanced features. Microsoft PowerPoint is a slideshow presentation. Microsoft PowerPoint एक slideshow presentation है. In this chapter, we will complete this topic: slide layout, adding background, inserting table, inserting chart, applying animation effect, adding transitions to slide, use of media clip and action buttons, import data from other applications. All these topics we are going to cover in this chapter. Part 1. In first part we will complete 4 topics. In this chapter you will learn some advanced features of PowerPoint. इस चैप्टर में हम PowerPoint के एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे. दिस विल एनेबल्स यू टू गिव एन एंटायरली डिफरेंट लुक टू योर प्रेजेंटेशन. जो आपकी प्रेजेंटेशन को एक डिफरेंट लुक प्रिपेयर करेगा. एक डिफरेंट लुक होगा आपकी प्रेजेंटेशन का, एक इम्प्रेसिव लुक होगा. यू कैन ऐड एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिफरेंट स्लाइड लेआउट, मीडिया क्लिप एक्सेट्रा. इस पर आप एनिमेशंस भी डाल सकते हैं, डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स भी कर सकते हैं, मीडिया क्लिप्स, that means audio and video also you can add it. First, slide layout. In slide, placeholder can be arranged differently. Slide में placeholder जो है वो differently arranged होती है. The arrangement of placeholder on a slide is called slide layout. और इसमें जो placeholder की arrangement होती है slide में उसे slide layout कहते हैं. You can choose different slide layout from the slide layout palette. आप different slide layout choose कर सकते हैं different palette से. Now follow the following steps to change the slide layout. Change करने के लिए steps. पहले steps सारे रीड आउट होंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये steps हुए हैं. Open a slide on a presentation or choose a slide whose layout you want to change. Go to the Home tab and navigate the layout button in the slide group. Click the drop down arrow next to the layout option. Third, the Office theme palette appear on the screen. Choose the desired layout style for selected slide. Fourth, the layout of the selected slide is changed. Now let's see how these steps are done. Slide layout. Slide layout. हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप होम टैब पे जाइए, इसके बाद स्लाइड ग्रुप में लेआउट पर आप क्लिक करिए और यहाँ से कोई भी एक लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम ये टू कंटेंट वाला सिलेक्ट कर रहे हैं. जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया तो हमारी स्लाइड टू कंटेंट में चेंज हो जाएगी. जैसा दिया हुआ था वैसे ही टू कंटेंट में चेंज हो गई. नाउ मूविंग फर्दर एडिंग बैकग्राउंड. You can add different background style to your presentation to make it more attractive. आप अपने presentation के background change कर सकते हैं ताकि उसे more attractive बना सकें. Like you may add solid color, picture, texture and gradient to the slide. जैसे कि आप solid color, picture, texture या gradient अपनी slide पर डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा attractive और impressive हो. Solid color background. To set a solid color background to a slide, following steps you will do. अब हम स्टेप्स करेंगे सॉलिड कलर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारी प्रेजेंटेशन में. अब हम स्टेप्स सीखेंगे. जैसे हमने पावर पॉइंट ऑन किया है, इसके बाद हम डिज़ाइन टैब पर जाएंगे. जैसे हमने डिज़ाइन टैब क्लिक किया उसके बाद उसी में कस्टमाइज में फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आप क्लिक करोगे. इसके बाद सॉलिड फिल फर्स्ट आप सिलेक्ट करोगे. जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर फिल कलर्स पर क्लिक करके आप एक कलर सिलेक्ट करोगे. जैसे आपने एक कलर सिलेक्ट किया तो आपका बैकग्राउंड सॉलिड बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा. Now moving further, gradient background. You can set the gradient background by the following steps. अब हमारे प्रेजेंटेशन में gradient background कैसे यूज्ड होगा अब हम वो सीखेंगे. अब gradient background फिर से हम डिज़ाइन टैब पर जाएंगे. सेम हम वहाँ जाएंगे, दैट इज़ फॉर्मेट बैकग्राउंड. जैसे हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक किया वहाँ से सेकंड ग्रेडियंट फिल वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिर से एक कलर चूज़ करेंगे. लेट्स चूज़ दिस वन
एंड सी, दैट इज ग्रेडियंट बैकग्राउंड में चेंज हो गया हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी स्लाइड्स किस में चेंज हो गई, ग्रेडियंट बैकग्राउंड में. लेट्स मूव फर्दर. Now moving further, picture background. A picture can be set at your slide background. To insert a picture at your background of your slide, follow the steps. अब आपको जब अपनी प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में अगर पिक्चर डालनी हो तो हमारे सारे स्टेप्स ऐसे होंगे. Let's see how the steps are to change the background of our presentation. अब पिक्चर बैकग्राउंड हम कैसे ऐड करेंगे हमारी स्लाइड्स में. सबसे पहले फिर से डिज़ाइन टैब पर जाएंगे, सेम वही फॉर्मेट बैकग्राउंड पर हम क्लिक करेंगे. फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद ये पिक्चर्स एंड टेक्सचर फिल, उस पर हम क्लिक करेंगे. जैसे वहाँ क्लिक किया उसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे. जैसे हम फाइल पर क्लिक करते हैं इस तरह से हमारे पास एक इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है. जैसे ही हमारे पास ये होगा, हम पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे. जैसे अब हमने ताजमहल सेलेक्ट किया, फिर इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, पिक्चर बैकग्राउंड हो जाएगा स्लाइड का. इस तरह से पिक्चर बैकग्राउंड स्लाइड्स में हम प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो. Now moving further to the texture background. In order to set a texture background, following steps are steps you will do. Now हमारी प्रेजेंटेशन में टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड करने के लिए ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो कर. अब टेक्सचर कैसे ऐड करेंगे हमारी स्लाइड्स में. अगेन सेम डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है, वही सेम फॉर्मेट बैकग्राउंड भी हमें जाना है. फॉर्मेट बैकग्राउंड से पिक्चर और टेक्सचर फिल पर क्लिक करना है. इसके बाद यहाँ हमें टेक्सचर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये एरो, ड्रॉप डाउन एरो पर हमें क्लिक करना है और टेक्सचर्स, ये सारे टेक्सचर्स हैं उसमें से कोई एक टेक्सचर आप सिलेक्ट करेंगे. जैसे आपने सिलेक्ट किया तो आपका बैकग्राउंड टेक्सचर में चेंज हो जाएगा, आपकी स्लाइड में टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा. मूविंग फर्दर टू द पैटर्न बैकग्राउंड, यू हैव टू डू द फॉलोइंग स्टेप टू ऐड द पैटर्न बैकग्राउंड. अब हमारी प्रेजेंटेशन में पैटर्न बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे. लेट्स सी द स्टेप्स. अब पैटर्न बैकग्राउंड, अब हम हमारे बैकग्राउंड को पैटर्न बैकग्राउंड में कैसे चेंज करेंगे. सेम अगेन हम डिज़ाइन टैब पर जाएंगे, सेम वही फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे. जैसे आपने क्लिक किया वहाँ पर पैटर्न फिल पर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे. हाँ, हम पहले कलर भी चेंज कर लेते हैं. कलर हम ले लेते हैं रेड कलर, ओके. और उसमें से कोई एक पैटर्न आप सिलेक्ट करोगे. जैसे आपने सिलेक्ट किया आपका स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा पैटर्न बैकग्राउंड में. नेक्स्ट हम एक और करके देखते हैं. दिस वन, सी इट, कैसे हमारा बैकग्राउंड पैटर्न बैकग्राउंड में चेंज हो गया. Moving further now, inserting the table. A table represents the data in an organized manner. You can insert table on a slide by the following steps. अगर हमारी प्रेजेंटेशन में टेबल हो तो वो हमारे डेटा को बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में परफॉर्म करता है और उससे हम एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन हमें मिलती है. Let's see how we can add the table in our presentation to look it more attractive and impressive. Let's have a look on the steps. नाउ इंसर्ट टेबल हम कैसे इंसर्ट करेंगे हमारी स्लाइड्स में. सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे. जैसे हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया यहाँ हम टेबल्स पर क्लिक करेंगे. जैसे ही टेबल क्लिक किया उसके बाद इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया तो हमें इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. कॉलम 5 रोज 2, ओके क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें टेबल भी हमारी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास अब टेबल भी अवेलेबल है हमारी स्लाइड्स पे. मूविंग फर्दर नाउ इंसर्टिंग अ चार्ट. द ग्राफिकल
representation of data is called chart. एक graphical representations of data उसे हम chart कहते हैं. It is an effective way to do comparison, analyze, study the growth and also determine the trend. ये बहुत ही effective way है जिससे हम analyze कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ग्रोथ की स्टडीज़ हो सकती है, ट्रेंड्स के बारे में हमें पता चलता है. अब इससे हम किस तरह से चार्ट को इंसर्ट करेंगे हमारी प्रेजेंटेशन में, अब हम वो सारे स्टेप्स देखेंगे किस तरह से हम हमारी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं. अब हमारी प्रेजेंटेशन में हम चार्ट डिस्प्ले करेंगे. अब वो कैसे होता है, सारे स्टेप्स हम वो फॉलो करेंगे. सबसे पहले इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे. जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, इलस्ट्रेशन पे जाके चार्ट पे जैसे हमने क्लिक किया, एक चार्ट आप सिलेक्ट करोगे, चार्ट कॉलम उसमें से, और इसके बाद ओके पर आप क्लिक करोगे. जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर कर्सर राउंड हो रहा होगा और थोड़ी देर बाद आपका यहाँ चार्ट डिस्प्ले होगा, जिससे आप कंपैरिजन कर पाओगे कोई भी दो कैटेगरीज को. सी, चार्ट अब डिस्प्ले हो चुका है हमारी प्रेजेंटेशन पर. इस तरह से चार्ट डिस्प्ले होगा हमारी प्रेजेंटेशन पर. Till now we have completed 4 topics about Microsoft PowerPoint and we have seen the advanced features of MS PowerPoint. In the next part we will learn something more and different about our MS PowerPoint presentation.